Assalamu alaikum. Today our topic is extrahepatic biliary apparatus. So extrahepatic biliary apparatus, what is the function of the apparatus? It collects bile from the liver, and then after collection from the liver, it stores in the gallbladder for a while, and after the storage in the gallbladder, it transmits into the second part of duodenum, from where it metabolizes the food. So बाइल जो है वो बंद लीवर में रहा है, वहाँ से कलेक्शन हो रही है और गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोर हो रहा है. तो गॉल ब्लैडर जो है वो एक स्टोरेज रेजरवायर है फॉर द बाइल, एंड देन दिस गॉल ब्लैडर ट्रांसमिट्स ऑल द बाइल टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम. एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus के अंदर आता क्या है, इसके कॉन्टेंट्स क्या है? तो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी apparatus इज फॉर्म्ड बाय दीज कॉन्टेंट्स. So right and left hepatic ducts, common hepatic duct, cystic duct, gallbladder and bile ducts. So mainly there are 4 ducts and 1 viscera which is gallbladder. They collectively form the extrahepatic biliary apparatus. क्योंकि बाइल की ट्रांसमिशन में ये सारी डक्ट्स और गॉलब्लैडर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो सब मिल के जो है ये बाइल को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम. सो collectively they are known as the extrahepatic biliary apparatus. I am going to show you a diagram. यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर के साथ सिस्टिक डक्ट जा रही होती है और ऊपर जो है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स. तो ये सिस्टिक और राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स आपस में यहाँ यूनाइट करती हैं और नीचे बना देती हैं कॉमन बाइल डक्ट. कॉमन बाइल डक्ट आगे जाके डुओडेनम के सेकेंड पार्ट में वो जो बाइल है वो ट्रांसफ़र कर देती है. इफ़ यू सी दिस मॉडल, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज़ लीवर. So bile is formed in the liver. After the formation of bile, it transmits into the gallbladder. तो जो लीवर के inferior edge है वहाँ से जो bile है वो gallbladder के अंदर आ जाता है और ये storage reservoir है. After the storage, यहाँ से जो bile है वो नीचे इधर cystic ducts में आता है. तो ये cystic duct है और ये जो है हमारे पास लीवर से आ रही हैं राइट और लेफ्ट hepatic ducts हैं. राइट एंड लेफ्ट लोब से आती हैं और राइट एंड लेफ्ट hepatic ducts बनती हैं. तो cystic duct और राइट एंड लेफ्ट hepatic ducts आपस में यूनाइट करती हैं. अच्छा, ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स नीचे कॉमन हिपैटिक डक्ट बन जाती हैं. तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट्स दे यूनाइट एंड दे फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट. अब कॉमन बाइल डक्ट ऑल द वे गोज अप टू रीचेज अप टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम. यू कैन सी कॉमन बाइल डक्ट ओपन्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुओडेनम. So bile was formed in the liver. It came into the gallbladder. After that into the cystic duct. Cystic duct united with the common hepatic duct, which is formed by right and left hepatic ducts. They form the common bile duct, and common bile duct is transmitting all the bile into the second part of the duodenum. All the food will come from the stomach into the first part and then the second part. So this bile is transmitted into the second part of duodenum, from where the bile will metabolize the food. So this is the whole mechanism of the extrahepatic biliary apparatus, and these are the contents. After that, you need to know about the gallbladder. So gallbladder is a pear-shaped reservoir of the bile. As I told you that it provides a storage and it is pear-shaped. It is situated in the inferior surface of the right lobe of the liver. You can see this is right lobe of the liver and this is the left lobe of the liver. And in the inferior edge of the right lobe of the liver, gallbladder is situated. Liver provides a fossa for the gallbladder in the inferior surface, and that fossa gives attachment to the gallbladder. It is 7 to 8 centimeter long and 3 centimeter wide. There are different parts of the gallbladder. There is fundus, there is body, there is neck, there is Hartmann pouch. So you need to know all these parts of the gallbladder. You can see here, this is the fundus of the gallbladder. After the fundus of the gallbladder, this is the body of the gallbladder. जहाँ पे ये बॉडी जो है वो नैरो डाउन हो जाती है पोस्टीरियो मीडियली. यू कैन सी इट्स टुवर्ड्स द बॉडी एंड इट्स पोस्टीरियरली. सो पोस्टीरियो मीडियली ये बॉडी ऑफ द गॉल ब्लैडर जो है वो रोटेट करती है और ये जो है नैरो पार्ट नेक बन जाता है. सो ये जो नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर है ये नीचे ये हार्टमैन पाउच बना रही होती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये नैरो पार्ट है. अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बने, दैट कंडीशन इज नोन एज कोलीलिथियासिस. आई एम गोइंग टू टीच यू दिस क्लिनिकल इन वेरी मच डिटेल. So if the stones are formed in the gallbladder, the most common site for the obstruction of the gallbladder will be this neck of the gallbladder or Hartmann pouch, because this is the narrow part of the gallbladder जहाँ पे वो स्ट्रक कर सकते हैं. तो जो बाइल है उस स्टोन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे आकर स्टोन बैठ गया है तो यहाँ से जो बाइल है वो नीचे सिस्टिक डक्ट में जा ही नहीं सकेगा. और आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, अगर बाइल के एक्यूमुलेशन इस तरह गॉलब्लैडर के अंदर हो जाए और स्टोन उसको आगे ना जाने दे रहा हो
तो वो बाइल की ओवर एक्यूमुलेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर में और पेशेंट को जो है वो जॉन्डिस हो जाता है, राइट। अब उसके बाद यू नीड टू सी दिस डायग्राम, यू कैन सी दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, जिसको मैंने इस तरह ट्राइंगल बनाया है। ये इसलिए कि जहाँ पे गॉल ब्लैडर ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे नेक स्टार्ट है और वो नीचे नेक के बाद सिस्टिक डक्ट शुरू हो रही है, ये सिस्टिक डक्ट है और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है जो यूनाइट कर रही है आपस में, नीचे बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। तो ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज़ नोन एज द कैलिट्स ट्राइंगल। इसकी एक सर्जिकल इंपॉर्टेंस है कि जब भी स्टोन बनते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, हमने उसको ऑपरेट करके उन स्टोन्स को रिमूव करना होता है। तो ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ दो स्टोन्स हम गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं विद द स्टोन्स। सो ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर, सर्जन नीड्स टू बी केयरफुल इन दिस ट्राइंगुलर एरिया because this is a critical area where cystic duct, common hepatic duct and common bile duct are lying, and all the arteries supplying to it like cystic artery, cystic artery, they are also lying in this region. So Kelly's triangle is formed by the segment 5 of the liver. कल आपने functional segments बनाए थे liver के, तो it is bounded by segment V, यानी segment 5 of the liver, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट। ये कैलिट्स ट्राइंगल बनाते हैं। दिस इज़ अ क्रिटिकल एरिया ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। और यहाँ पे जो है सर्जन को केयरफुल रहना होता है, क्योंकि हम जब सर्जरी करते हैं तो हम इस पार्ट तक रिमूव करते हैं गॉल ब्लैडर को, यहाँ से लेकर यहाँ तक गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं, हम डक्ट्स को रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक के ऊपर जाके सुचर लगा देते हैं और बांध देते हैं इस जगह को, ताकि जब सर्जन कट करे तो सिर्फ नेक तक कट करे और कैलिट्स ट्राइंगल जो है वो कट ना करे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टिक आर्टरी जो चीफ सोर्स है गॉल ब्लैडर और एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अपरेटस की ब्लड सप्लाई का, अगर वो डैमेज हो गई, वो रप्चर हो गई, तो देयर विल बी एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट कैन लीड टू द डेथ। आई होप द कैलिट्स ट्राइंगल इज क्लियर टू यू। आफ्टर दैट comes the bile duct part. So bile duct is formed by the union of cystic and common hepatic ducts. As I already told you that this is the cystic duct and this is the common hepatic duct, where they unite and they form the common bile duct. So common bile duct is a result of union of cystic and common hepatic ducts. Again, very important chapter, very important question regarding viva, regarding written. So they always ask how common bile duct is formed or how extrahepatic biliary apparatus is formed. What are the contents of extrahepatic biliary apparatus? So it is formed by the union of cystic and common hepatic ducts and it is 8 centimeter long. अब जो bile duct का बेटा कोर्स है, you can see bile duct जो है वो along the डूडिनम रन कर रही है। तो इसके जो रिलेशंस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं कि इसका कुछ पार्ट सुप्राडूडिनल है, कुछ डूडिनम के पीछे है जो रिट्रोडूडिनल कहलाता है, और कुछ पार्ट जो है वो डूडिनम के फर्स्ट पार्ट से नीचे है और वो इंफ्राडूडिनल कहलाता है। तो यू शुड नो रिलेशंस ऑफ सुप्रा, रिट्रो एंड इंफ्राडूडिनल, ये बहुत ज़्यादा यूएचएस में पूछे जाते हैं। फॉर द सुप्राडूडिनल रिलेशन यू कैन सी हेयर, इन द सुप्राडूडिनल रिलेशन यू कैन सी हेयर, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डूडिनम, जो इसके ऊपर बाइल डक्ट रन कर रही है वो सुप्राडूडिनल पार्ट है बाइल डक्ट का। तो इसके जो रिलेशंस है बेटा, एंटीरियरली उसके लीवर आ रहा है, तो आप बोलोगे कि एंटीरियर रिलेशंस आर फॉर्म बाय द लीवर, वाइल पोस्टीरियरली यू कैन सी कि ये डूडिनम है, इसका ये कॉमन बाइल डक्ट है। तो बाइल डक्ट का जो डूडिनम से ऊपर वाला पार्ट है वो सुप्राडूडिनल है, इसके ऊपर तो वो लीवर आ रहा है, आप इस मॉडल में देख रहे हो कि इसके ऊपर तो लीवर आ रहा है, लेकिन अगर आप पोस्टीरियरली देखो बाइल डक्ट के बिल्कुल पीछे क्या पड़ा हुआ है, पोर्टल वेन पड़ी हुई है। ये पोर्टल वेन मैंने आपको बताया था कैसे बन रही थी, सुपीरियर मेजेंटेरिक स्प्लीनिक एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक की यूनियन से पोर्टल वेन बन रही थी। तो सुप्राडूडिनली डूडिनम से ऊपर यू कैन सी कि कॉमन बाइल डक्ट का जो पोस्टीरियर रिलेशन है वो पोर्टल वेन और यहाँ पे एपीप्लाइक फोरामेन बनता है, वो इसके रिलेशन आते हैं। और इसके टू द लेफ्ट यू कैन सी ये इसका लेफ्ट साइड है, इस साइड पे स्प्लीन पड़ी हुई है, इस साइड पे स्टमक है, तो ये लेफ्ट है। तो इसके लेफ्ट रिलेशन में आपके पास आ जाती है हिपैटिक आर्टरी। सो सुप्राडूडिनल रिलेशंस एंटीरियरली इज गोइंग टू बी लीवर and posteriorly is going to be portal vein and epiplaque foramen, and to the left common bile duct के left side पे ये hepatic artery इसका relation बना देगी। You can see here in the notes. While for the retroduodenal you can remember a mnemonic other than the concept, that is dig, खोदना होता है ना dig। Anteriorly it's going to be first part of the duodenum, so this is the retroduodenal course of the common bile duct। ये डूडिनम के जो पीछे है ये रिट्रोडूडिनल कोर्स है, तो इसके जो एंटीरियर रिलेशन है कॉमन बाइल डक्ट का रिट्रोडूडिनल पार्ट में वो कौन बना रहा है, फर्स्ट पार्ट और डूडिनम। तो एंटीरियर रिलेशन डूडिनम बनाएगी, जबकि पोस्टीरियरली इंफीरियर वेना केवा। यू कैन सी हेयर के
रेट्रोडुडिनल जो पार्ट रन कर रहा है उसके पीछे क्या पड़ी हुई है, ये इंफीरियर वेना केवा पड़ी हुई है। तो पोस्टीरियर रिलेशन इंफीरियर वेना केवा एंड टू द लेफ्ट गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी होगी। ये गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी है, ये गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी है। तो गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी इसका लेफ्ट रिलेशन बनाएंगे रेट्रोडुडिनल का। सो डिग डुडिनम इन्फिया वेना केवा एंड गैस्ट्रोडुडिनल आर्टरी, रेट्रोडुडिनल रिलेशंस को याद रखने के लिए। जबकि इंफ्राडुडिनल के लिए यू हैव द निमोनिक पाए, सो राइट। सो एंटीरियरली इट्स गोइंग टू बी हेड ऑफ द पैंक्रियाज एंड पोस्टीरियरली इट्स गोइंग टू बी इन्फिया वेना केवा। कॉन्सेप्ट वाइज आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, यहाँ पे ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट जब आ रही है, ये इंफ्राडुडिनम, डुडिनम के नीचे फर्स्ट पार्ट के नीचे वाला रिलेशन है। तो एंटीरियरली उसके ये हेड ऑफ द पैंक्रियाज ही आ रहा है और उसके पोस्टीरियरली इन्फीरियर वेना केवा ही लाई कर रही है, ये इन्फिया वेना केवा लाई कर रही है। तो पाए हेड ऑफ पैंक्रियाज एंड इन्फीरियर वेना केवा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि कॉमन बाइल डक्ट जब ये हेड ऑफ पैंक्रियाज तक पहुंचती है ना, इंफ्राडुडिनली पहुंचती है, डुडिनम के फर्स्ट पार्ट के नीचे आती है, तो यहाँ पे ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स पे खड़ी होती हैं। तो कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ यूनाइट करके हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला बना देती है और वो जो बाइल है वो हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला में आ जाता है और वहाँ से वो सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडिनम में आता है। ये भी एक फ्रिक्वेंटली आस्क वाइवा एंड MCQs क्वेश्चन है कि हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला कैसे बना और वेयर इट ओपन्स इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडिनम। इसी तरह अगर स्टोन बनेगा गॉल ब्लैडर के अंदर तो वो सिस्टिक डक्ट में आएगा। सिस्टिक डक्ट से वो क्या होता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट जब यूनाइट की तो वो नीचे बाइल डक्ट बनी, तो सिस्टिक डक्ट से वो स्टोन डायरेक्ट बाइल डक्ट में आ जाएगा। बाइल डक्ट आगे पैंक्रियाटिक डक्ट से यूनाइट करिए तो स्टोन ट्रैवल करेगा दोनों डक्ट्स के थ्रू और हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला में आ जाएगा। अब वो स्टोन हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला से कहाँ आएगा, इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द डुडिनम। यू कैन ऑल्सो सी हियर CBD, दिस इज कॉमन बाइल डक्ट जो बनी वो आगे पैंक्रियाटिक डक्ट्स को ज्वाइन कर रही है, पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करिए और दोनों ज्वाइन करने के बाद जो है वो ये हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्प्यूला बना देते हैं और फिर वो जो है आगे सेकेंड पार्ट ऑफ डुडिनम में ट्रांसमिट हो जाता है।